سيدنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. بابا سے بلند درود پاک پڑھے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابا اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابو بکر ہم چکا عمر در طواف ہو عثمان آب زمزم علی حج اکبر است. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ
جان کائنات اور روح کائنات حضور امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو ہمیشہ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور حق کی معرفت عطا فرما کر اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور علیہ السلام سے پیار کیا، محبت کی، تو اس محبت میں جتنی تکالیف، جتنے مصائب اور دکھوں اور تنگستیوں کا سامنا صحابہ اکرام کو کرنا پڑا، ایسی مثال پوری کائنات کے اندر نہیں ملتی۔ اور چونکہ وہ اپنی محبت میں سچے تھے اور سچی محبت میں یہ لازم ہے کہ وہ محبت نہیں ہے، وہ جفا نہیں ہے، جس جفا کے اندر ستم نہ ہو، جس جفا کے اندر تکلیف نہ ہو۔ محب اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے تو جب اس کی محبت سچی ہوتی ہے تو اس راستے میں جتنے بھی بچھائے گئے کانٹے ہوتے ہیں اور جتنے بھی جلائے ہوئے انگارے ہوتے ہیں، محب کو اپنی محبوب کی محبت تک پہنچنے کے لیے، رسائی حاصل کرنے کے لیے کبھی ان کانٹوں پہ بھی چلنا پڑتا ہے، کبھی انگاروں پہ بھی چلنا پڑتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ 12 ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی تو محبت کا حق ادا کیا، اور ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک مثال چھوڑی، ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک نمونہ چھوڑا کہ محبت کرو تو ایسے محبت کرو کہ تم محبت کرنے میں پاگل کہلاؤ، محبت کرنے میں تم جاہل کہلاؤ، محبت کرنے میں تم بے وقوف کہلاؤ، پھر جا کر تمہاری محبت کامل محبت ہوگی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب منافقین سے کہا گیا کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں، تو آگے سے انہوں نے کیا جواب کہا؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ، کہنے لگے کیا ہم ایمان لائیں ایسے جیسے آمن السفہاء، جیسے بے وقوف ایمان لائے، ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کن کو سفہاء کہا گیا؟ سفہاء سفیہن کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ سفیہن کہتے ہیں ایک بے وقوف کو، جو بھولنے والا ہو اس کو سفیہ کہا جاتا ہے، اس کو سفیہ کہا جاتا ہے۔ جو محبت میں اس قدر مگن ہو جائے کہ لوگ اس کو دیوانہ کہہ دیں، لوگ اس کو پاگل کہنا شروع کر دیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے آقا سے ایسی محبت کی کہ منافقین نے ان کو بے وقوف کہہ دیا۔ کیوں بے وقوف کہہ رہا ہے؟ کہا محبت کا جو معیار ہے نا، یہ تو اس معیار
ضروریات کے اوپر پورے اتر رہے ہیں۔ یہ محبت کرنے کے بعد نہ باپ کے رشتے کو دیکھتے ہیں، نہ بیٹے کے رشتے کو دیکھتے ہیں، نہ بھائی کے رشتے کو دیکھتے ہیں، نہ ماں کے رشتے کو دیکھتے ہیں، سارے رشتے ایک طرف چھوڑ کر مدینے والی سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ وہ ہمارے لیے محبت کا نمونہ ٹھہرے، ہمارے لیے محبت کا معیار ٹھہرے۔ کیسی محبت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، جلیل القدر صحابہ میں سے۔ غزوہ بدر کے موقع پر انہوں نے حارث بن عامر کو قتل کیا۔ جب حارث بن عامر کو قتل کیا، جنگ بدر کا وقت گزر گیا، پھر کچھ عرصہ گزرا تو ان کو مکہ والوں نے کسی طریقے کے ساتھ دھوکہ دے کر گرفتار کر لیا اور مکہ المکرمہ میں لا کر حارث بن عامر کے بیٹوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ کہا یہ ہے تمہارے باپ کا قاتل، جس نے تمہارے باپ کو قتل کیا تھا وہ یہ خبیب بن عدی ہے، اس کو خرید لو جتنے میں خریدنا ہے۔ انہوں نے خرید لیا، اور خریدنے کے بعد جس قدر ان کے اندر غم و غصہ تھا اور جس قدر اور باپ کے قتل ہونے کا جو غصہ تھا اور جلال تھا، اس کو نکالنے کے لیے انہوں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا۔ پہلے تو ایک بند کوٹھی کے اندر دروازہ بند کر کے بھوکا اور پیاسا چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے ایک پلاننگ بنائی، مشورہ کیا کون سا دردناک طریقہ ہے کہ جس کے ساتھ ان کو شہید کیا جائے تاکہ ہم اپنے باپ کے خون کا انتقام لے سکیں۔ انہوں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں، مکہ المکرمہ حرم کعبہ کے قریب ایک سولی بناتے ہیں اور ایک تختہ بناتے ہیں اور اس کے اوپر ان کو لٹکاتے ہیں، اور لٹکا کر ان کے اوپر جو ہے وہ نیزے اور برچھیوں اور تلواروں کے ساتھ حملہ کرتے ہیں اور دنیا والوں کو بتائیں گے کہ ہم نے اپنے باپ کا خون کا انتقام کیسے لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خبیب بن عدی کو باہر نکالا گیا۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جنہوں نے محبت حضور سے کی، پھر وہ تکالیف کو نہیں دیکھتے، وہ پریشانیوں کو نہیں دیکھتے، وہ پھر ستم اور ظلم کو نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں اپنے آقا کی محبت پر کتنا اتر رہا۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ وہ کیسی محبت ہے کہ جس کے اندر آزمایا نہ جائے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب باہر لایا گیا، تختہ اعزاز کے اوپر لٹکانے سے پہلے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی زندگی کی خواہش ہو، کوئی آخری تمنا ہو تو بولو۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً کہا میری زندگی کی کوئی تمنا نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے چند لمحے مہلت دے دو، میں 2 رکعت نماز ادا کر دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ظالموں نے ان کی طرف دیکھا تو دیکھا پھانسی کا پھندا تیار ہے اور تختہ بالکل تیار ہے، پتہ ہے دائیں بھی دشمن، بائیں بھی دشمن، سامنے بھی دشمن، پیچھے بھی دشمن، کوئی یار و مددگار نہیں، کوئی آج سہارا نہیں، کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں، ہر طرف سے دشمن ہی دشمن، کوئی نیزہ لے کر کھڑا ہے، کوئی تلوار لے کر کھڑا ہے اور کوئی خنجر لے کر کھڑا ہے، انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت خبیب بن عدی کے چہرے کی طرف جب دیکھا گیا تو حضرت خبیب بن عدی کے چہرے پر مسکراہٹ کی مسکراہٹ، تبسم ہی تبسم تھا، اطمینان ہی اطمینان تھا، اور اتنا اطمینان انہوں نے دیکھ کر بڑے پریشان ہو کر پوچھا خبیب بن عدی ہر طرف تو
तेरे दुश्मन खड़े हैं और तुझे पता है कि अभी तूने कत्ल हो जाना है, शहीद हो जाना है, लेकिन क्या मजाल है कि तेरे चेहरे पर कोई परेशानी के आसार हो और कोई कमी के आसार हो। आपने बड़े इत्मीनान के साथ जवाब दिया, फरमाया ओ जालिमों, तुम तो फांसी का फंदा देख के खुश हो रहे हो ना, तो मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि तुम्हें तो फांसी का फंदा नजर आ रहा है, मुझे तो मदीने वाली सरकार का इंतजार है कि मेरे आका कब तशरीफ लाएंगे और हुजूर मुझे अपना दीदार और अपना जलवाए अनवर, अपना चेहरा अनवर दिखाएंगे। मैं हुजूर के चेहरे को देखता जाऊंगा और अपनी जान जाने आफरीन के हवाले कर दूंगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, नफल अदा कर लो, नमाज अदा कर लो। नमाज के लिए हजरत खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए, 2 रकअत नमाज अदा की। अदा करने के फौरन बाद सलाम फेरा, बड़ी जल्दी से नमाज अदा की। उन काफिरों ने हैरान होकर, मुताज्जब होकर पूछा, खुबैब बिन अदी ये क्या बात है? यहाँ तो लोगों को जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ने का मौका मिले तो वो अपनी नमाज को लंबा कर देते हैं, वो अपनी नमाज को, अपने सजदों को लंबा कर देते हैं। ये तो जिंदगी के आखिरी सजदे हैं, ये तो जिंदगी का आखिरी मौका है नमाज का, इसके बाद तो नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आप हैं कि बड़े इत्मीनान के साथ आपने नमाज अदा की और बड़ी जल्दी नमाज अदा कर ली। फरमाया मेरे महबूब के दुश्मनों और इस्लाम के दुश्मनों सुनो, मैंने जल्दी नमाज इसलिए अदा की है कि कहीं तुम, मेरा जी तो आज बड़ा चाहता था कि नमाज को लंबा कर दूं, लेकिन इसलिए नमाज को लंबा नहीं किया कि कहीं तुम ये ना समझो कि खुबैब बिन अदी मौत से डर कर अपनी नमाज को लंबा कर रहा है। हम मौत से डरने वाले लोग नहीं हैं, मौत को तो हम सीने से लगाने वाले लोग हैं, कोई परवाह नहीं है। नमाज अदा करने के बाद आपने जब उनको ये जवाब दिया, उन्होंने तख्ते के ऊपर आपको रखा, फांसी का फंदा आपके गले के अंदर डाला, तो आपने उस वक्त बरजस्ता फिल बदी ये शेर आपने कहा आपने फरमाया अदस्तु गुबाली हीना उक़्तलु मुस्लिमन बिअय्यि जम्रिन काना फिल्लाहि मसराई। फरमाया ओ मेरे महबूब के दुश्मनों और इस्लाम के दुश्मनों और जालिमों सुनो, मैं आज इस हालत में अपनी जान आफरीन के हवाले कर रहा हूँ और खुदा की कसम है मुझे अपनी जान के जाने पर कोई परवाह नहीं है, मुझे अपनी जान के जाने पर कोई परवाह नहीं है। क्यों? फरमाया इसलिए कि मेरा इस बात पे मुतमईन हूँ कि मैं दुनिया से अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ ईमान सलामत लेके जा रहा हूँ। फरमाया मैं इस पल पे गिरूं, इस पहलू पे गिरूं या बाएं पहलू पे गिरूं या मुंह के बल गिरूं, बिअय्यि जम्रिन काना फिल्लाहि मसराई, मेरे गिरने का जो अंदाज है वो कोई भी हो, मुझे जालिम जिस कदर भी मुझे कत्ल करें, जिस हालत में भी कत्ल करें, मुझे कोई परवाह नहीं है। इसलिए कि हीना उक़्तलु मुस्लिमन, मैं दुनिया से जा रहा हूँ तो मुसलमान होके जा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। यार कुर्बान ना जाए खुदा की कसम है सहाबा की अज़मत पर कि यहाँ तो लोगों को मौत का फंदा देखकर जो है वो दिल का दौरा पड़ जाता है और कोई वहीं पे गश खा के गिर जाता है, लेकिन जिसे अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी और अपने रब की रज़ा मकसूद हो, उनके पांव डगमगाते नहीं है। सहाबा इकराम की सीरत को पढ़ें तो ऐसे सहाबा के किरदार में मिलते हैं कि जिन्हें सीने के ऊपर तीर लगता है, सीने के ऊपर खंजर लगता है, तो जब ये सीने से खून का फवारा निकलता है तो वो हाय मारे नहीं करते, हाय मारेंगे, हाय मेरी जान गई, ये नहीं कहते, बल्कि सहाबा इकराम का एक ही नारा होता था और वो नारा ये था, फुज़्तु बिरब्बिल काबती, फुज़्तु बिरब्बिल काबती, रब्बे काबा की कसम में तो दुनिया में कामयाब हो गया।
दे रहा हूँ। अल्लाह अकबर। आपको शहीद कर दिया गया और शहीद करने से पहले जब आपके जिस्म से गोश्त उतारा गया, एक जालिम आगे बढ़ा और उसने सीधा नेज़े की जो नोक थी वो आपके पेट के अंदर घोंपते हुए ये कहा कि खुबैब बिन अदी, बता आज जिस कैफियत में तू है, तेरे दिल के अंदर तो ये ख्याल जरूर गुजरता होगा कि जिस आका का कलमा मैंने पढ़ा है और कलमा पढ़ने की पैदाइश में और उसकी वजह से आज मुझे ये तकलीफ हो रही है, जिनका कलमा मैंने पढ़ा है वो आज मेरी जगह पर होते तो ये तकलीफ मैं तो न सहता। तेरे दिल के अंदर ये ख्याल आया होगा। हजरत खुबैब बिन अदी, मौत का फंदा सामने है, जिस्म जख्मी है, खून जिस्म से रिस रहा है, इस कैफियत में भी आपने उन काफिरों को जवाब देते हुए फरमाया, वो काफिरों, इस हालत और कैफियत में अब मजीद तुम मेरे ईमान के ऊपर हमला कर रहे हो और मुझसे ये पूछते हो कि यहाँ इस कैफियत में मेरे आका हूँ। खुदा की कसम है मैं यहाँ हूँ और मेरी हालत और कैफियत ये है कि तुम मेरे जिस्म के अंदर जो है वो बच्चियाँ और नेज़े तलवारें मार रहे हो। खुदा की कसम है मैं इस कैफियत में ये ख्याल करना कि मेरी जगह पर मेरे आका होते तो बड़ी दूर की बात है। मैं खुदा की कसम ये भी गवारा नहीं करता कि मैं यहाँ ये तकलीफ सह रहा हूँ, मेरे आका मदीना इबाद के अंदर हूँ, हुजूर के पाँव मुबारक में कांटा चुभ जाए मैं तो इसको भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। कैसा मोहब्बत का अंदाज है ये। मोहब्बत की तो फिर इस मोहब्बत को तोड़ निभाया। जफा जो इश्क में हो वो जफा ही नहीं और सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। आज हम मुसलमान हैं और कलमा पढ़ने के बाद हमें जरा सी तकलीफ आ जाए तो पता नहीं कितनी हमारी जुबान पर बातें आ जाती हैं और कितने गिले और शिकवे आ जाते हैं कि हमने नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, ज़कात दी, कुर्बानी वाजिब हुई वो अदा की और कोई कसर तो छोड़ी नहीं है, लेकिन दीन के रास्ते में तकलीफ क्यों आ रही है? बताओ क्या सहाबा से बढ़कर किसी की जान कीमती कायनात के अंदर है जिनका इंतखाब अज़ल से रब फरमाए और अपने महबूब की मायत और सोहबत के लिए इंतखाब रब करे जिन रूहों का, वो कितने खुशकिस्मत और खुशबख्त लोग हैं जब उन्होंने अपनी जानों को बचाया ना। जब मोहब्बत की रसूल करीम अलैहिस्सलाम से तो फिर हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनको काफिरों ने पकड़ा और पकड़कर इनको पहले मारा और मारने के बाद फिर जमीन के ऊपर चलते हुए अंगारे बिछाए गए और हजरत अम्मार को उन अंगारों के ऊपर चित बल लेटा दिया गया, कमर के बल ला दिया गया और हजरत अम्मार कहते हैं मेरे जिस्म से पिघलने वाली जो चर्बी थी उस चर्बी की वजह से अंगारे बुझ गए। लेकिन उस वक्त भी मुझसे काफिर पूछते थे बता अम्मार अब इस्लाम लाने का मजा आया? तो मैं उनको मुस्कुरा कर कहता था अभी तो इस्लाम लाने का मजा आ रहा है, अभी तो ईमान लाने का मजा आ रहा है। हजरत अम्मार की वालिदा हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहली शहीदा इस्लाम जो अबू जहल के सामने गई, अबू जहल ने कहा तू है जो अपने नबी के दीन को कबूल करके अपना पुराना दीन छोड़ दिया? कहा हाँ मैं ही हूँ कि मैं अपने नबी के पर हाथ पर ईमान ला चुकी हूँ और इस्लाम मैंने कबूल कर लिया है, बाकी सब मज़ाहिर झूठे हैं। उस बदबख्त ने नेज़ा हाथ में था तो आपके सामने खड़े होते हुए पेट पर हमला किया। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जिस्म के दो टुकड़े हो गए और यहाँ से पेट पर जब उसने खंजर मारा तो पेट चाक हो गया और आपके जिस्म के दो हिस्से हो गए, जिस्म कट गया। इस हालत और कैफियत में भी आखिरी वक्त में भी हजरत सुमैया के जो जिंदगी के आखिरी सांस थे वो यही कलिमात थे कि फुज़्तु बिरब्बिल काबा थी। अबू जहल तू अपनी बदबख्ती का इजहार कर गया जो तूने करना था, लेकिन खुदा की कसम है मैं रब्बे काबा की कसम उठाकर कहती हूँ कि मुझे रब ताला ने दुनिया के अंदर कामयाबी अता फरमा दी है, मुझे कामरानी अता फरमा दी है। सहाबा इकराम ने मजमाइन ने तो
قربانیاں دی ہیں. آج 14 صدیاں گزر گئی. 14 صدیوں کے بعد آج الحمدللہ دین اسلام محفوظ طریقے کے ساتھ ہم تک پہنچا یا نہیں پہنچا؟ بولیے پہنچا یا نہیں پہنچا؟ کیسے پہنچا؟ 1 صدی کے بعد پہلی کتابیں ان کے اندر تحریف ہو گئی، وہ بدل گئی. ایک کتاب بھی آج سلامت نہیں مل رہی. 14 صدیاں گزرنے کے بعد قرآن بھی محفوظ ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی محفوظ ہے. آخر اس کے پیچھے کوئی بات تو ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ میرے کریم آقا کے صحابہ کی قربانیاں ہیں، وہ صحابیات کی قربانیاں ہیں. اسلام ہم سے قربانیاں مانگتا ہے. اسلام کا بقا اور اسلام کی حفاظت ہر دور کے اندر قربانی سے ہوئی ہے. نہ تسبیحاں چلانے سے اسلام بچتا ہے، نہ بھوک چاڑ کرنے سے اسلام بچتا ہے، نہ خانقاہوں میں بیٹھنے سے اسلام بچتا ہے، نہ مدارس کی فقط مسجدوں پر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کا سبق پڑھانے سے فقط اسلام بچتا ہے. فقط کس سے اسلام نہیں بچتا؟ حضرت امام حسین سے بڑھ کر حدیث رسول پڑھنے اور پڑھانے والا بڑھ کر کوئی نہیں تھا. لیکن مدینہ پاک کی پرکیف فضا کو چھوڑ کر میدان کربلا کی طرف رخ کرنا، کوفہ کی طرف رخ کرنا، میدان کربلا کے اندر پتھر کٹوانا، یہ حضرت امام حسین کا فقط اس وجہ سے تھا کہ مدینہ پاک کے اندر بیٹھ کر بھی دین کی خدمت ہو سکتی ہے، اور وہاں لوگ نذرانے بھی دیتے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی چوم رہے ہیں. لیکن جب نانا جان کے دین پر حرف آئے تو پھر نواسے کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگ ہاتھ چومتے رہیں، وہ اپنے مسلح پر بیٹھا رہے. پھر حق ادا کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ نواسا اپنے مسلک کو چھوڑے اور میدان کربلا کی طرف رخ کرے، پتھر تن کٹوائے، اور پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرے مالک پورے کا پورا خاندان تیرے محبوب اور ہمارے نانا جان کے دین کی بقا کی خاطر میں نے پیش کر دیا ہے. اب میری جان بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہے. مولا تو بتا اب تو بھی مجھ سے راضی ہوا ہے یا نہیں راضی ہوا؟ یا رسول اللہ، قربانیاں صحابہ نے دی، دین آج تک محفوظ ہے. قربانیاں ہمارے اکابرین نے دی، دین آج تک محفوظ ہے. اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دین بغیر قربانیوں کے محفوظ رہے گا، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے، دین محفوظ ہو جائے گا. اس دور کے اندر ایک ایک کفر کے ایک ایک ملک کی طرف سے للکار ہوتی تھی، اسلام کو للکارا جاتا تھا. مسلمانوں آج کے دور کے اندر تو چاروں اطراف سے اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، ہر طرف سے اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے. اپنے بیگانے کیا سب کی بولی ایک بنتی جا رہی ہے، اور دین اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر سازش کا لوگ جو ہے وہ ساتھ بن رہے ہیں. ایسے دور کے اندر ہمیں یہ پہچاننا ہوگا کہ جب بھی کوئی اسلام کے راستے پر نکلتا ہے، جب بھی وہ اللہ کے احکام کے راستے پر، احکام کو پورا کرنے کے راستے پر چلتا ہے، تو پھر درمیان میں روکنے والے شیاطین کئی آ جاتے ہیں. یاد رکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، آج ہم ایک سنت قربانی کی صورت کے اندر اپنے آقا کی اور اپنے آقا کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ادا کرتے ہیں، اور ایک سنت، ایک طریقہ حجاج کرام جمرات کو کنکریاں مار کر سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں. پتہ ہے ان جمرات کو آج تک کیوں کنکریاں ماری جا رہی ہیں، کس وجہ سے ماری جا رہی ہیں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حکم ہوا کہ اے میرے پیارے خلیل، اپنی پیاری چیز، محبوب چیز، حسین و جمیل، پیارا بیٹا، اکلوتا بیٹا میرے نام پہ قربان کر دیجئے.
घर से बेटे को लेकर निकलते हैं कुर्बान करने के लिए अल्लाह की राह में। रास्ते में शैतान आ जाता है। इब्राहिम कहाँ जा रहे हो? अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए। कहा क्या कर रहे हो? बेटे भी कभी किसी ने ज़िबा किए हैं, लहदे जिगर भी कभी किसी ने ज़िबा किए हैं। रास्ता रोका अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए, तो आपने कंकर उठाकर पीछे की जानिब फेंका। कहा तू तो शैतान है, मुझे रब के हुक्म से रोकता है, पीछे हट जा, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है। इब्राहिम की जान और इस्माइल की जान तो क्या जाने हैं, करोड़ों जाने भी हो तो अपने रब के नाम पे कुर्बान करने के लिए तैयार हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कंकरियां मारी, जवाब दे दिया दुनिया वालों को। आज भी जमरात को कंकरियां मार रहे हैं। भाई किसी को वहां शैतान नजर आया? बोलिए तो सही। नहीं बोल रहे, कोई शक है? भाई किसी हुज्जाज किराम यहाँ हमारे हाजी साहब में बैठे हैं, हाजी साहब पीछे बैठे हैं, सारे कई हुज्जाज किराम बैठे होंगे, वहाँ कंकरियां मारते हुए शैतान नजर आया? फिर क्यों मारते हो? कहा अल्लाह के नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं, अल्लाह के नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं। पता चला जहाँ भी शरीयत इस्लामिया के अहकाम पर अमल करने की कोशिश करोगे, रास्ते में तुम्हारा दुश्मन जरूर आएगा। जहां भी इस्लाम के अहकाम पर अमल करने की कोशिश करोगे, ये आ जाएगा, सोचे डालेगा, ताबीनात करवाएगा। क्या करने जा रहे हो? ये दौर है ऐसे इस्लाम पर चलने का जिस तरह तुम चल रहे हो? नहीं, अब वो दौर तो नहीं रहा। अब तो सिर्फ कलमा पढ़ लिया, नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, हज कर लिया, ज़कात दे दी, इस्लाम के अहकाम पूरे हो गए। इसके अलावा कुछ इस्लाम नहीं है। आज भी हमारा रास्ता शैतान रोक रहा है, इब्लीस हमारे रास्तों में खड़ा है। शरीयत इस्लामिया के रास्तों में, इस्लाम के रास्तों के अंदर इब्लीस खड़े हैं, कई तरह के इब्लीस खड़े हैं। और जो कुछ नजर भी आ रहे हैं, कुछ नहीं भी नजर आ रहे हैं, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए हमने कंकर उठाकर इनको मारने हैं और शैतानों को भगाना है और अपने रब को और रब के महबूब को राजी करना है, रब के महबूब को राजी करना है। दुनिया वाले कभी किसी से राजी नहीं होते, याद रखना। और जब इंसान रब को वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु, अल्लाह का कुरान कहता है अगर दुनिया में किसी को राजी करना चाहते हो अपनी जिंदगी में, तो सबसे ज्यादा राजी करने के लायक रब है या रब का रसूल है। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु, ज्यादा हक रखते हैं कि इनको राजी करो। दुनिया वाले तो किसी से राजी नहीं होते। रब को राजी करो और रब के रसूल को राजी करो। कैसे रब राजी होगा? कैसे अल्लाह का रसूल हमसे राजी होगा? दुनिया से हम कैसे कामयाब जिंदगी गुजार कर दुनिया से रुखसत होंगे? जब हम शरीयत इस्लामिया के पाबंद बन जाएंगे और दीन इस्लाम के लिए हर कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो फिर इंशाअल्लाह उल अजीज हमारा रब भी हमसे राजी हो जाएगा और रब का रसूल भी हमसे राजी हो जाएगा। मेरे बाबा जी किबला उस्ताद गिरामी अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे, आप फरमाते थे मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जितना पढ़ा और सीरत सहाबा को पढ़ा, सीरत रसूल को पढ़ा, मैं आखिर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि करीम आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के अंदर 80% 100 में से 80% फकत उन सहाबा को दुआओं से नवाजा है जिन सहाबा ने आका की इज्जत और हुर्मत पर पैदा दिया है। 80% हुजूर इस्लाम ने किनको दुआएं दी हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को, उन सहाबा को दुआएं दी जिन्होंने हुजूर की इज्जत पे पहरा दिया, नामुस रिसालत पर पहरा दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अम्मार को जब अंगारों के ऊपर लिटाया गया ना, हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, तो जालिम आपको अज़ियत दे रहे थे। इतने में करीम आका अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ, तो आपने देखा कि अम्मार को तपते हुए जलते हुए अंगारों के ऊपर लिटाया गया है और पुष्ट के बाद लिटाया गया है। आपने जब अंगारों को देखा तो दस्ते मुबारक उठा दिए, या नारुकूनी बरकत अला अम्मार कमा कुंती अला इब्राहिम,
चिंगारे बुझ गए और हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सैयदना फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर एक दिन हजरत खुब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु किसी काम की गरज से हजरत सैयदना फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन के सामने कोई काम कर रहे थे। जरा सा पीठ से कपड़ा हटा, हजरत फारूक आज़म की नजर पड़ी तो कहा, खुब्बाब ये तुम्हारी पीठ पर निशान किस चीज के हैं? जरा अपना कपड़ा हटाओ और मुझे दिखाओ कि ये किस चीज के जख्म हैं, किस चीज के निशान हैं। आपने अपनी पुश्त मुबारक से जब कपड़ा हटाया, हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म ने देखा गर्दन से लेकर पुश्त तक आपकी पूरी पीठ के ऊपर निशान ही निशान पड़े हुए हैं, गड़े ही गड़े पड़े हुए हैं। कहा, खुब्बाब ये गड़े और ये निशान किस चीज के हैं? कहा, आपको पता नहीं है कि मुझे एक वक्त में जब अभी इब्तिदाए इस्लाम था तो मुझे कुफारे मक्का ने जलते हुए अंगारों के ऊपर लिटाया था, वो मेरी पुश्त जल गई थी, आज ये निशान वो जलने के हैं। अल्लाह अकबर। हजरत फारूक आज़म की आंखों में आंसू आ गए। आपने उनकी पुश्त मुबारक को उठाकर कहा, खुब्बाब अपनी पुश्त मुबारक, अपनी पुश्त आगे कर, जो पुश्त नामूस रिसालत के लिए इतनी तकलीफें सहे, मैं अमीरुल मोमिनीन उस पुश्त का बोझा लेना चाहता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा, जो नामूस रिसालत के लिए तुमने कुर्बानियां दी और जो इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी, आज सदियां गुजर गई, 1400 साल गुजर गया। आज 14 सदियां गुजरने के बाद मेहराब मिंबर पर नाम लिया जा रहा है हजरत खुबैब बिन अदी का, हजरत खुब्बाब का, हजरत बिलाल हबशी का, हजरत सुहैब रोमी का, सहाबा इकराम के नाम लिए जा रहे हैं। सदियां गुजर गई, नाम आज भी रोशन है या नहीं रोशन? कब्रें भी रोशन है, मज़ारात भी रोशन है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपने नबी के दीन से वफा की है। आज इस्लाम हमसे वफा का तकाजा करता है, आज इस्लाम हमसे जफा का तकाजा करता है। कलमा पढ़ने के बाद मुसलमानों, ये इस्लाम हमसे आज़माइशात का तकाजा करता है। ऐसा नहीं हो सकता इस्लाम लाने के बाद हमें कुर्बानी ना देनी पड़े, इस्लाम लाने के बाद हमें कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। सूरह अनकबूत है, जाएं घर में कुरान खोल लें, तफसीर भी तर्जुमा भी पढ़ लें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोग अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। लोगों, क्या लोग ये गुमान करते हैं कि वो ईमान लाने के बाद आजमाए नहीं जाएंगे, वो छोड़ दिए जाएंगे, उनको आजमाइश में नहीं डाला जाएगा? क्या लोग ये गुमान करते हैं? तो कहा, ऐसा नहीं होगा। इस्लाम लाने के बाद तो आजमाइशात का सामना करना पड़ेगा, इम्तिहानात का सामना करना पड़ेगा, मालों की कमी, जानों की कमी, इज्जत आबरू की कमी, फलों की कमी, औलाद की कमी। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जू व नक्सिन मिनल अम्वाल वल-अनफुसि वस-समरात व बश्शिरिस साबिरीन। कहा, ये सारी कमियां, कोताहियां, ये तुम्हारी जिंदगी के अंदर तुम्हारे इम्तिहानात आएंगे, लेकिन सब्र से काम लेना। रब सब्र करने वालों को खुशखबरी दे रहा है। अल्लाह नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आखिरी शेर पढ़कर आपको पैगाम देना चाहता हूँ। मेरी बात हो तो शायद गलत हो सकती है, किसी और की बात उठाकर बात करूं तो बात गलत हो सकती है, लेकिन हर मुसलमान अल्लामा इकबाल मुसव्विर पाकिस्तान को हक मानता है और साहिब इल्म मानता है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, चू गोयम के मुसलमानम बलरजम के दाना मुश्किलाते ला इलाहा। जब मैं कहता हूँ ना कि या अल्लाह मैं मुसलमान हूँ तो मैं एक मर्तबा कांप जाता हूँ, मेरे जिस्म पर कपकपाहट तारी हो जाती है कि जब मैं कहता हूँ या अल्लाह मैं मुसलमान हूँ तो फिर मैं देखता हूँ कि मुसलमान को कितनी तकालीफ का सामना करना पड़ता है। कि दाना मुश्किलाते ला इलाहा, कि कलमा तैयबा पढ़ने के बाद मुसलमान को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
आज हम सब कुछ देख रहे हैं अपनी आंखों से। कायनात में आज वो दौर नहीं रहा कि किसी को कुछ खबर ना हो। मीडिया का दौर है, हर बंदा जानता है क्या कुछ हो रहा है, क्या क्या मामला। और दीन इस्लाम के सामने कौन कौन सी जो है वो दीवारें खड़ी की जा रही हैं। और हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत पर कितने डाके डाले जा रहे हैं। ऐसे दौर के अंदर हम ये कहें कि हमें फकत नमाज से गर्ज है, तो याद रखना वक्त गुजर जाएगा। रब ताला वकफा बिल्लाहि हसीबा, वो रब अपने महबूब की हिफाजत के लिए काफी है, वो रब गुस्ताखों को जवाब देने के लिए काफी है। लेकिन इम्तिहान मेरे और आपके ईमान का है कि हमने रब की बारगाह में पेश होना है, कब्र में जाना है, हशर के मैदान में हुजूर के सामने पेश होना है। तो अगर रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हमसे पूछ लिया कि बताओ मेरी इज्जत पर तुमने कितना पैरा दिया था, मेरी नामूस के लिए तुमने क्या किरदार अदा किया था, मेरी खत्म नबूवत पर जब डाके डाले जा रहे थे, पूरा आलम कुफर मिलकर जो है वो उस वक्त मेरी खत्म नबूवत पर हमला कर रहा था। मुसलमान मेरे गुलाम बता तेरा किरदार क्या था। तो उस वक्त हमारे पास क्या जवाब होगा। जरा कभी तन्हाई के अंदर बैठकर अपने सीने पर हाथ रख करके इस बात के अंदर हमें गौर करना चाहिए। और आप भी गौर करना कि हमें कब्र हशर में जिस हस्ती ने काम आना है, उनके दीन के लिए हमने क्या किया है और आज उनके दीन के साथ क्या हो रहा है, उनकी इज्जत और नामूस पर कितने हमले हो रहे हैं। और आज भी अगर हम मसलहतों का शिकार हो गए, हम मैं कहूँ मौलाना वो तो फकत मुसल्ले से गर्ज है और मेहराब और मिंबर से गर्ज है, दीन चल रहा है, जब तक पेट चल रहा है दीन का काम हो रहा है और बस यही दीन है। तो इतना तो दीन नहीं है। ये तो दीन के साथ गद्दारी होगी कि फकत दीन का नाम तो लें, लेकिन जब दुश्मन सामने खड़ा हो, दीन पर हमला कर रहा हो और अपनी आवाज को भी दीन के खिलाफ उठने वाली आवाज के खिलाफ अपनी आवाज को भी बुलंद न कर सकें, दुश्मन को ललकार भी ना सकें, दुश्मन का बदकार मकरू फेल लोगों के सामने बयान भी ना कर सकें, तो खुदा की कसम है फिर इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, फिर जीने का कोई फायदा नहीं है। मरना है, एक ना एक दिन मरना है। हमसे पहले भी लाखों आए, करोड़ों आए, दुनिया से चले गए। हम भी आए तो रहेंगे, हम बाकी नहीं रहेंगे। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जो भी आया है वो फानी है, दुनिया से चला जाना है। हम भी नहीं रहेंगे, हमारे बाद भी लोग आएंगे, करोड़ों आएंगे, वो भी नहीं रहेंगे। रहेगा नाम तो फकत अल्लाह का नाम रह जाएगा, दीन इस्लाम का नाम रह जाएगा। मरना है कोई ऐसा काम दुनिया में करके जाओ, हुजूर से वफा करके जाओ कि कब्र में हमें अपनी पहचान करवाने की जरूरत ना पेश आए। रसूलुल्लाह खुद फरमाए ये तो मेरा गुलाम आ रहा है। ऐसे हमें काम करने चाहिए। रब्बे ज़ुल जलाल हमें दीन इस्लाम के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए, दीन इस्लाम पर चलकर हमें इज्जत की जिंदगी अता फरमाए और जिल्लत की मौत से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि।